اسلام سے دشمنی, مسلمانوں سے دشمنی مکے میں عام تھی. اس دشمنی کی آگ کو بجھانے کے لیے مصطفیٰ ہمیشہ تدبیر کرتے تھے. اس تدبیر کا ایک حصہ تھا کہ حضور ہجرت کرنے عمرہ کرنے آیا ہے, 3 دن ٹھہرنے کا ٹائم صرف ہے, ایگریمنٹ کے مطابق واپس مدینہ جانا ہے. اسی دوران سیدہ میمونہ سے آپ نے عقد کیا. سیدہ میمونہ کی 8 بہن تھی, مکہ کے 8 بڑے خاندان میں بھی آئی ہوئی تھی. حضور نے دشمنوں کی دشمنی کمزور کرنے کے لیے سیدہ میمونہ سے عقد کیا. رزلٹ کیا نکلا کہ 8 بڑے خاندانوں سے رشتہ قائم ہو گیا, دشمنی کی آگ بجھ گئی. اور خالد ابن ولید جو میدان بدر میں دھمال مچا چکا تھا اسلام کے خلاف, خالد ابن ولید جو میدان احد میں دھمال مچا چکا تھا اسلام کے خلاف, 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اسی خالد ابن ولید کی وجہ سے اتنا بڑا مشاق, اتنا بڑا بریو فائٹر, اتنا بڑا کوہنا مشق تیر انداز, مکے کا سب سے بڑا بہادر تھا. سیدہ میمونہ کا بھتیجا, سیدہ میمونہ کی پرورش میں رہنے والا, جب اس نے دیکھا میری پھوپھی نے مصطفیٰ سے عقد کر لیا ہے, تو کئی ہفتے کے بعد خالد ابن ولید اپنے پھوپھی کے نکاح کی وجہ سے مصطفیٰ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا. یعنی اسی نکاح کے صدقے میں خالد ابن ولید جیسا سیف اللہ اسلام کو مل گیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 9 سال کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, چونکہ حضور کی ساری بیویاں یا تو 40 سال کے اوپر کی ہیں, سب بیوہ تھی, صرف ایک طلاق شدہ ہے, صرف ایک کنواری ہے سیدہ عائشہ. مصطفیٰ کا مردوں کا قانون دیا ہوا ابو ہریرہ کے ذریعے, انس کے ذریعے, عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے, عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے, دوسرے صحابہ کے ذریعے مردوں کا قانون پہنچا. عورتوں کے مخصوص مسائل شب و روز حضور کی ساری باتوں کو کمپیوٹر کی طرح سینے میں ریکارڈ کر کے امت مسلمہ تک پہنچانے کا کام کرنے والی مفسرہ, محدثہ, مفکرہ تو چاہیے کوئی تو اسلامی شریعت کی تکمیل کرے. اگر غور کرے گا ظالم, مصطفیٰ اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. وہ تو جناب جبریل نے خواب میں سیدہ عائشہ کا چہرہ مصطفیٰ کو دکھلا کے بولا کہ اللہ کو پسند ہے اس سے آپ نکاح کرے. اللہ کی مرضی کے مطابق حضور نے نکاح کیا. جب نکاح کیا تو عرب کے کلچر میں ایسا تھا, بچے سے نکاح ہو سکتا تھا, اور رخصتی جوان ہونے کے بعد وہاں کے کلچر کے مطابق 9 سال میں لڑکیاں جوان ہو جاتی تھی. عمر ابن عاص مصر کا گورنر ہے, وہ 10 سال میں شادی کرتے ہیں اور 11ویں سال بیٹا تولد ہوتا ہے. یعنی باپ بیٹے میں صرف 11 سال کا فرق ہے. 10 سال میں شادی, 11ویں سال میں بیٹا تولد ہونا. عرب کا کلچر اور ہے, ہندوستان کا کلچر اور ہے. آج بھی وہاں 4 شادی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ہندوستان میں 1 سے زائد شادی کو معیوب مانا جاتا ہے, چونکہ یہاں کا کلچر, یہاں کا انوائرنمنٹ, یہاں کے آدمی کی صحت کی کمزوری اس بات کا پرمیشن نہیں دیتی کہ ایٹ اے ٹائم وہ 4 عورتوں سے عقد کر کے نبھا سکے. عرب میں 1 شادی والا غریب مانا جاتا ہے, 4 بیویوں والا وہ سماج کا عزت دار مانا جاتا ہے. کلچر کا اثر ہے, ملک کا اثر ہے. حضور عربی تھے, عرب میں پیدا ہوئے تھے. 6 سال میں شادی کرنا, 9 سال میں رخصتی ہونا عرب کے کلچر کے مطابق تھا. ورنہ اسلام کا کوئی دشمن دوسرا ڈیمیرٹ کھوج رہا ہے, مگر اس شادی کو ڈیمیرٹ بنا کے ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ عیب کی بات نہیں تھی. سیدہ عائشہ کی شادی ہم مسلمانوں کے لیے ایک وردان ہے, ایک تحفہ ہے, کیونکہ حضور کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ نے تمام احادیث کو ریکارڈ کر کے جو امت تک پہنچایا ہے. آج علماء کہتے ہیں شریعت ادھوری رہتی اگر ماں عائشہ ہمیں نہیں ملتی. یہ ان کا احسان ہے کہ شریعت آج مکمل ہو گئی ہے. یہ حکمتوں سے بھری ہے مصطفیٰ کی شادی. صاح و انصاف اسے سیکس سے تعبیر کرتا ہے. اگر یہ غور کر لیتا کہ 25 سال میں 40 سالہ خاتون, اب 50 سال کے اوپر آگے جانے کے بعد 9 سالہ خاتون کا انتخاب, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتے ہیں, وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العزت ان سے کہتا ہے. وہ نائب پروردگار ہیں مصطفیٰ. میں کہنا چاہتا ہوں یہ سڑے ہوئے لوگ کیا جانے. امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ آج سے 40 سال پہلے انہوں نے روئے زمین کے کروڑوں ودوانوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے سوچا تھا 100 آدمی کو چھاٹ کے میں سلیکشن کروں کہ کون ہے جو دنیا میں اپنی تعلیمات سے سب سے زیادہ امپریس دنیا کو کیا ہو, سب سے زیادہ فالوور جس کے موجود ہوں, سب سے زیادہ جن کی تعلیمات کو ساری دنیا میں مانا جاتا ہو, یعنی جس کا اثر سب سے زیادہ ہو. انہوں نے دنیا کے سارے مذہبی رہنما, سیاسی قائدین, سبوں کی زندگی کا مطالعہ کیا. بہت بڑا ایجوکیشنسٹ,
बहुत बड़ा एडवोकेट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट और बहुत बड़ा माहिर तालीम डॉक्टर माइकल हार्ट, उन्होंने सारी दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट कर उन्होंने बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, उनकी जिंदगी का मुताला किया, खाका तैयार किया। अब थे कि लाखों में से 100 को छांटना मुश्किल काम था, अकीदत में नहीं हकीकत की रोशनी में, ताकि कल कोई अकीदत का इल्जाम न लगा सके। वह मजहबन क्रिश्चियन है, तालीमन साइंटिस्ट और एडवोकेट है। उसने यह बीड़ा उठाकर जब किताब द 100 छप के परेज से बाहर आई, कोई कहता था वह क्रिश्चियन है, जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसानों की सूची में। कोई कहता था वह साइंटिस्ट है, न्यूटन जो फादर ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों का बाप माना जाता है, उसका नाम अव्वल नंबर पे होगा। लेकिन जब किताब छप के परेज से बाहर आई तो दुनिया दंग रह गई कि रूए जमीन का एक बड़ा मुहक्किक, एक बड़ा रिसर्चर, एक बहुत बड़ा तालीम याफ्ता आदमी, उन्होंने हकायक से करीब होकर मुताला करके जिसको अव्वल नंबर पे रखा है, इस दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष, कामयाब तरीन इंसान, जिन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया को बदला हो, दुनिया का कल्चर, दुनिया की तहजीब, दुनिया का सिविलाइजेशन, लोगों के जीने का अंदाज, और सबसे ज्यादा जिनका फॉलोवर और जिन्होंने एक अच्छी गवर्नमेंट दुनिया को दी, जिन्होंने एक अच्छा मजहब दुनिया को दिया। कोई मजहब की दुनिया में तो है रहनुमा, वह पॉलिटिकल कोई रोल नहीं है, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर है, मजहब तो लोगों को दिया, वह कोई पॉलिटिकली एक छोटे से गवर्नमेंट की स्थापना नहीं की। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, रसूल है, उलुल अज़्म रसूल में से है, मजहबी तबलीग तो फरमाई, लेकिन एक इस्लामिक गवर्नमेंट कायम करना, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये मौका वहां नहीं मिला। लेकिन एक ऐसा शख्स जो मजहब भी दिया हो, एक अच्छी गवर्नमेंट भी दिया हो, सिवाय मोहम्मद अरबी के कोई दूसरा नहीं, तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। तारीख आदमियत का इकलौता इंसान है मुस्तफा, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स बन के उभरा है। मैं कहना चाहता हूं, यह टीवी का एंकर जो एक जुमला अंग्रेजी बोल नहीं सकता है, एक जुमला हिंदी शुद्ध नहीं बोल सकता है, लेकिन यह कम पढ़े लिखे सड़े हुए लोग मुस्तफा जाने रहमत पे उंगली उठाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा मुहक्किक डॉक्टर माइकल हार्ट, वो कहता है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो मुझे दलील दे दो कि मैं मोहम्मद से बड़ा किसको मैं लिखूं। अगर तुम दलील दे देगा तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा, और तुम अगर माकूल दलील देगा तो मैं उसको अव्वल नंबर पे रखूंगा। आज 40 साल हो गए, दुनिया का कोई दानिश्वर माकूल दलील नहीं दे पाया। वह दलील देगा भी कैसे? वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज जिस मुस्तफा के सर पे अल्लाह ने बांध दिया है, कयामत आ जाएगी, मुस्तफा से बड़ा किसी को साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए बरेली का इमाम कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। यानी सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा नबी। सरकारे दो जहां का जवाब नहीं है, जब महानतम पुरुष दुनिया का, वो जिनकी परवरिश करे, वो जिनको सींचे, वो जिनको प्रिपेयर करे, वो जिनको तैयार करे, वो जिनके मुंह में लुआबे दहन डाल के तैयार करे, वह जिनकी पेशानी को चूम के तैयार करे, वह जिनको सीने से लगा के तैयार करे, वह जिनको कांधे पे बिठा के जुमा का खुतबा देकर तैयार करे, वह जिनको अपनी पेशानी पे बिठा के सजदा दराज करके तैयार करे, वह जो सदके की खजूर मुंह से निकाल कर उसे प्रिपेयर करे, वह जिसे अपने गोद में बिठा के तैयार करे, जिसे लुआबे दहन डाल के सीने को बड़ा चौड़ा करे। यानी हुसैन जो कारनामा अंजाम दिया है करबला में, कभी कर ही नहीं सकते थे ऐसा, क्योंकि उनकी तरबियत में मुस्तफा का रोल है। पैगंबर आसम ने तैयार किया है, लुआबे दहन डाला है, हसन और हुसैन नाम रखा है, पेशानी को चूमा है,
कान में अजान भी दी है, इकामत भी कही है, उसे गोद में खिलाया है, सजदा दराज किया है, उसे बाजू में रखा है, उनके रोने को अपने बेचैनी से ताबीर किया है, यानी जो उनको अपनी गोद में रखकर अपने बेटे की जिंदगी को उन पर कुर्बान किया है। नहीं सुनिए आपने, एक तरफ हुसैन बैठे हैं, एक तरफ आपका साहबजादा बैठा है, जिब्राइल अमीन आ गए, कहा सरकार आप दोनों से प्यार कर रहे हैं, ये आपका शहजादा है, ये आपका नवासा है, दोनों को अल्लाह एक साथ रहने नहीं देगा, एक को अपने पास बुला लेगा। अब आप बताएं किसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास बुलाए? सरकार दो जहां फरमाते हैं अगर हुसैन चले गए तो दर्द मुझे भी होगा, फातिमा को भी होगा, अली को भी होगा। मैं नहीं चाहता कि अली को कष्ट हो, फातिमा को तकलीफ हो और फिर मुझे भी तकलीफ हो, मगर मेरा बेटा अगर चला गया सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को अल्लाह ले ले, हुसैन को जिंदगी दे दे। उसके बाद कई दिन के बाद आपका साहबजादा इंतकाल कर जाता है। इंतकाल के बाद जब भी हुसैन को मुस्तफा देखते थे तो देखने के बाद कहते थे ये मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह। यानी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सरकार दो जहां ने कितना जबरदस्त प्यार हुसैन आजम को दिया है। और इस्लामी कानून है जब बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल का हो तो इस बीच में खूब जबरदस्त प्यार बच्चों को देना चाहिए। उस वक्त बच्चे प्यार के मुस्तहिक होते हैं। इतना प्यार दे कि उसका हेजिटेशन दूर हो जाए, इतना प्यार दे कि दिमाग की बंद गिरा खुल जाए, इतना प्यार दे कि उसमें बुजदिली और वह डरपोक ना बन जाए, बुजदिली ना पैदा हो। जिस मदरसे में जिस स्कूल में मारने पीटने का माहौल है वहां के बच्चे सहमे सहमे रहते हैं, वहां के बच्चे एतराज नहीं कर सकते हैं, वहां के बच्चे उस्ताद की आंख देखकर उनका खून सूखने लगता है। इसलिए वहां का बच्चा कभी भी खुल के बात नहीं कर पाएगा और जब बात करेगा उस डर के माहौल से निकलकर वह गंदी बातें करेगा, फुहड़ बात करेगा। उस्ताद के तलफ्फुज का असर बच्चों पे होता है, माँ बाप की जबान का असर बच्चों पे होता है। जिनके माँ बाप खुश जबान हैं उनके बच्चे भी खुश जबान होते हैं। जो असातिज़ा सलीके और कायदे से बात करते हैं उनसे पढ़ने वाले बच्चे भी सलीकामंद हो जाते हैं। और जो असातिज़ा या जिनके वालिदैन फुहड़ होते हैं, बदजबान होते हैं, बदअखलाक होते हैं, गसीला होते हैं और बात बात में गुस्सा आता है, उनका बच्चा उनसे ज्यादा गुस्सा करने वाला हो जाता है, उनका बच्चा उनसे ज्यादा गुस्सा करता है। इस्लाम कहता है जब बच्चा 7 साल की उम्र तक हो उसको खूब प्यार दो, या तेरे लिए बादशाह है, बादशाह की तरह इज्जत दो। और जब ये बच्चा 10-7 साल से की उम्र का हो जाए उसे नमाज का आदेश दे। जब 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। आज लोग कहते हैं नमाज पर खिताब कीजिए, मैं कहता हूं नमाज पर खिताब की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हुजूर के एक हदीस पे मुसलमान अमल कर ले। हुजूर ने कहा था मुरु औलादकुम वहुम अबनाओ सबअ सनीन, तेरे बच्चे की उम्र जब 7 साल हो उसे नमाज का हुक्म दे। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ 10 सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो उसे मार के नमाजी बना दे, यानी मार मार के नमाजी बना। और अगर हुजूर की इस हदीस पर सारे माँ बाप अमल करें तो 11 साल का कोई बच्चा नहीं बचेगा दुनिया में जो नमाजी ना हो, कोई बच्ची नहीं बचेगी जो बेनमाजी हो। क्योंकि माँ बाप अपना फर्ज नहीं समझते, वो सारा ठिकरा उस्ताद पे फोड़ना चाहते हैं, खतीब पे। यही खिताबत करेंगे तो इनकलाब आएगा, अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। हर माँ बाप पर लाजिम है जमीन दे न दे, मकान दे न दे, बच्चे की तरबियत कायदे से करके अच्छा इंसान बना दे। क्योंकि आज जब बच्चे बिगड़ने लगे, अमेरिका में चरस, अफीम और ड्रग्स के आदी बने, तो वहां के लोगों ने करोड़ों डॉलर देकर वो बच्चों की तरबियत पे किताबें लिखवाना शुरू की कि जमीन मकान मत दीजिए, पहले बच्चों को आदमी बना दीजिए, वरना 50 करोड़ देंगे तो 1 साल में ड्रग्स पी के, चरस पी के सारे पैसों को बच्चा बर्बाद कर देगा। तो व्हाइट हाउस का प्राइम मिनिस्टर कौन, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वहां के बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर कौन बनेगा, मुल्क की हिफाजत करने के लिए आसमान में नासा के जरिए जाकर कौन तहकीक करेगा, उसके लिए जिगर चाहिए। अगर बच्चे ही उजड़ गए तो फिर हर डिपार्ट का माहिर कहां से पैदा होगा। जमीन मकान नहीं, बच्चों की तरबियत का ख्याल कीजिए। यानी जब बच्चे तबाह होने लगे तब कहा जाता है सबसे बड़ा गिफ्ट है बाप की तरफ से कि बच्चा को आदमी बना दिया जाए, तबाही से बचाया जाए और उनको कदम कदम पे उसको डिसिप्लिन सिखाया जाए। यही है आदमियत। मैं कहना चाहता हूं आपने अपने मजहब और अपने पैगंबर की उस बात की अहमियत को नहीं जाना। सारी दुनिया बच्चों की तबाही का तमाशा देखकर आज इस रुख पे आई है कि जमीन जगह से ज्यादा बड़ा गिफ्ट है डिसिप्लिन, अदब, तालीम, तहजीब सिखाना। चाइना, जापान में मकान जमीन से पहले बच्चों को तालीम, तहजीब, तमद्दुन, अदब सिखाना।
सिखाना। अमेरिका में इसी बात पे जोर दिया जा रहा है, जमीन मकान करोड़ों डॉलर फिक्स डिपॉजिट करने से बेहतर है बच्चों को अदब डिसिप्लिन सिखा दे। एक हदीस पाक सुने, हुजूर ने क्या फरमाया है। सरकार फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। 1400 साल पहले न अमेरिका का पता था, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी, हिंदुस्तान में एक कॉलेज तक नहीं था। उस जमाने में मुस्तफा जान रहमत ने अरब के डेजर्ट में बैठकर बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से जो कुछ कहा है, वह दुनिया के करोड़ों दानिश्वर की बोली एक तरफ, सिर्फ इस हदीस को एक पल्ले में रखें, इसका वजन सब पे गालिब आ जाएगा। जहां दुनिया वालों की नजर तरबियत के ताल्लुक से डिसिप्लिन और इल्म को सबसे प्रायोरिटी दी जा रही है, वही मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, सबसे बड़ा गिफ्ट अच्छा अदब सिखा देना, अच्छा इल्म सिखा देना। जहां नजर दानिश्वरों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा जान रहमत की 1400 साल पहले गई है। हुजूर ने इमाम हसन को ऐसा अदब सिखाया, ऐसा सींचा है। सिर्फ हाय हुसैना करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाय हसन करने से काम नहीं चलेगा। तो तू लोग दुनिया कहेगी यह हिजरों की जमात है, यह नामर्दों की जमात है, ये साहब काम चोरों की जमात है, ये साहब कमजोरों की जमात है, जो मातम करता हो, जो मरसिया गाता हो, जो सीना फाड़ता हो, जो सर के बाल नोचता हो। हुसैन इमाम हुसैन आसम ने जिंदगी से बताया, मुस्तफा जान रहमत ने अपने नवासे को तैयार करके बताया है कि किस तरह से एक बच्चे की तरबियत में किस तरह से काम लेना चाहिए। कदम कदम पे कब अजान है, कब तहनीक है, कब उसके लिए नमाज का हुक्म है, कब उसको हर मौके से अदब सिखाना है, कब नमाजी बनाना है। हुसैन आजम की शहादत तो जिंदगी के आखिरी दिन हुई है, यानी जो 55 साल 5 माह 5 दिन जो जिंदगी का आखिरी दिन था, उसी दिन इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पिया है। लेकिन उससे पहले ये 55 साल की लंबी जिंदगी हुसैन ने कैसे गुजारी। बचपन तो सारे लोग सुनाते हैं और शहादत एक दिन की कहानी सब लोग सुनाते हैं, लेकिन एक लंबी जवानी हुसैन आजम ने कैसे गुजारी। इबादत के साये में, रियासत के साये में, तबलीग के साये में, जिहाद के साये में, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के साये में वो थोड़ी बयान करता। हुसैन आजम की जिंदगी में शुजाअत भी है, हुसैन आजम की जिंदगी में सखावत भी है, हुसैन आजम की जिंदगी में आबिद शब्बेदार रहने की सिफत भी है। हुसैन आजम की जिंदगी में लगातार रोजे रखकर रूहानियत को जगमगाने का अंसर भी उसमें गालिब है। हुसैन आजम में सारी ह्यूमन क्वालिटीज मौजूद है और ये सारी तैयारी मुस्तफा जान रहमत ने की है। गोद में बिठाकर, सीने से लगाकर, जबान से जबान सटाकर, सूंघ कर, पेशानी चूमकर, जाने जितने औसाफ बुलंदी के होने चाहिए वह सारा वस्फ कूट कर मुस्तफा ने हुसैन में अता फरमाया। एक बार जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। मैं भी सीना कोटो हूं, मैं भी सर के बाल नोचूं, नहीं, जिसको नोचना है वह नोचे, जिसको कोटना है वह कोटे, जिसको मातम करना है वह करे। वह मातम की कहानी है, सब्र की कहानी है, शुजाअत की कहानी है, ये हिम्मत की कहानी है, यह हिकमतों से भरी है हुसैन की कहानी। हुसैन आजम साबरीन के इमाम का नाम है, हुसैन आजम हाथियों के सरदार का नाम है। आज एक आदमी हज पैदल जा रहा है, सारी दुनिया के लोगों ने तमाशा बना दिया है। कोई बोलता है कि पैदल क्यों जा रहा है जब हवाई जहाज मौजूद है। अपने आप को मुशक्कत में डालना है, ला तुल्कू ऐदीकुम इला तहलुका, अपने आप को बर्बादी के हाथों क्यों डाल रहा है। यानी लोग कुरान की आयतें पढ़ने लगे, सिर्फ वह हुसैन को पढ़ लेते, सिर्फ वह इमाम हसन को पढ़ लेते। 55 साल की उम्र है, 25 हज इमाम हसन इमाम हुसैन ने पैदल मदीना से चल के किया है। 25 हज, जो से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। 25 हज 55 साल की उम्र में। हिंदुस्तान का हाजी 80 साल की उम्र में एक हज करता है। इनका चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा सा रहता है। सऊदी अरब में जब कोई खजूर बांटने वाली गाड़ी खड़ी रह के हुज्जाज कराम को खजूर बांटती है गाड़ी, तो हिंदुस्तान का हाजी आगे बढ़ करके खजूर जमा करता है। और जब लगेज का मसला खड़ा होता है तो सारी खजूरें होटल ही में फेंक के वो चला जाता है। सिर्फ लेना है, चेहरा देना नहीं
नहीं, इंडोनेशिया के लोग करोड़ करोड़ लेके आते हैं, वहां के जायरीन पे खर्च करते हैं। तुर्की के लोग लाखों लाख डॉलर लेके आते हैं। मैंने रमजान में देखा वह लोग असहाबे सुफ़ा पे जितने लोग अमीर गरीब बैठे रहे सबों को वह डॉलर तकसीम करता है, रियाल तकसीम करता है, वो लेके आते हैं, चूंकि जानते हैं मक्का की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, मदीने की एक नेकी 50,000 के बराबर है। 1 रियाल खर्च करो तो गैर मदीना में 50,000 रियाल के बराबर खर्च करने का अज्र वहां मिल जाएगा। इसलिए वो लेके जाते हैं, खर्च करते हैं। और हम लोग का क्या है, 80 साल में 1 हज करते हैं। इंडोनेशिया का जवान शादी से पहले 5 हज कर चुका होता है। शादी के मौके पे पूछा जाता है कि आपके बेटे ने कितना हज किया है, आपकी बेटी ने कितना हज किया है, तो 4, 5, 6। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में पूछा जाता है आपकी बेटी ने मैट्रिक में कितना नंबर लाया है, इंटरमीडिएट किया है कि नहीं किया है, डीएलएड किया है कि नहीं किया है, नीट निकाला है कि नहीं निकाला है। यानी हम ये पूछते हैं, सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, नीट देखा, इंटरमीडिएट देखा, अक्द कर लिया। बाद में अगर वो लड़की आने के बाद बोलती है तुम चाहिए मुझको, तेरी माँ नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरा भाई नहीं, वो सारा कुंबा वबाल तुम पालो, तुम हो मेरे लिए, तुमको देख के मैं आई हूं, मैं तुमको जानती हूं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारी ममानी, तुम्हारी चची, तुम्हारी फूफी को नहीं, सब जंजाल तुम संभालो, मैं तुमको जानती हूं। तब उस वक्त पता चलता है कि शादी में मुस्तफा के पैगाम को ठुकराने का क्या नतीजा है। नाक देखा, आंख देखा, ओके है, ये नहीं पूछा कि दुआए कुनूत याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिम याद है कि नहीं, दरूद ताज याद है कि नहीं, अत्तहियात याद है कि नहीं, सुभान रब्बियल आला याद है या नहीं। नहीं, डीएलएड और नीट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, यानी सिर्फ ये पूछा। अब जाहिर सी बात है जो पीएचडी होल्डर है वो जब आएगी वो क्यों तुम्हारी माँ के चप्पल सीधी करेगी, वो क्यों तुम्हारे बाप को चाय बना के सुबह सुबह 5 बजे देगी, नहीं देगी ना। वो चूंकि वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, वो साहब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो पढ़ी लिखी खातून है, अब वो क्यों करेगी। तुमने दीन कहां देखा, अखलाक कहां देखा। हुजूर ने कहा था कि शादी में चेहरा देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है और खूबसूरती देखी जाती है। यानी तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। हुजूर ने कहा फज़फर बिज़ाति दीन, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह देना, दीन को प्रायोरिटी देना। मुस्तफा ने कहा जनरली लोग शादी में 4 चीजें देखते हैं, मगर तुमको कहता हूं तुम अखलाक देखना, तुम सिर्फ मुखड़ा मत देखना, नाक लंबी आंख बड़ी मत देखना, दीन देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, दीन देखना और दीनदार को तरजीह देना। मुस्तफा कहते हैं वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर हकीम वक्त ने, दुनिया के सबसे बड़े मौलिम ने क्या कहा, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्यों? इसलिए कि शादी सेक्स का मसला नहीं है कि एक दिन शादी करके लाया और जब तक सेक्स की तकमील हुई उसके बाद फिर चाहे कुछ भी हो सिर्फ मजा लेने का जरिया है। नहीं नहीं, अगर मेरा बाप शादी नहीं करता मैं कहां से पैदा होता, अगर मेरे दादा शादी न करते मेरा बाप कहां से आता, अगर महबूब इलाही के वालिद शादी न करते वो कहां से पैदा होते, सैयद मूसा जंगी दोस्त शादी न करते तो अब्दुल कादिर जिलानी कहां से आते, मौला अली फातिमा ज़हरा शादी न करते हसन और हुसैन कहां से आते। क्या मतलब है कि शादी ख्वाहिशात की तकमील का एक जरिया है, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम है तवालुद व तनासुल का, इंसानी सिलसिले को जारी रखने का, ताकि दुनिया में इंसान रहे। दुनिया की बहार है इसी इंसानी आबादी से कायम है। जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जानवर है, सारी चीजें इंसान के लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है। यही इंसान है जो शेर का पांव पकड़ के फाड़ता है, यही इंसान है जो चांद पे कदम रख के वहां की जमीन का पता लगाता है, यही इंसान है जो समंदर के नीचे गोता लगाकर 3 महीने तक रहकर वहां के हीरे जवाहिरात और मालूमात के खजाने को हासिल करता है, यही इंसान है जो फजाओं में 10-10 महीने मुअल्लक रहकर स्पेस की सच्चाई का पता लगाता है। इसी इंसान के लिए सारी दुनिया को मुसख्खर कर दिया है। इंसान ही से जिंदगी की बहार है। तो अब अगर इंसान अच्छा रहेगा वो न तहकीक करेगा जमीन कितनी बड़ी है, आसमान क्या है, आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है, अल्लाह ने मुझको क्यों पैदा किया। और जब शादी सिर्फ सेक्स की
तकमील का जरिया हो जाए और औरत सड़ी हुई मिल जाए और मर्द भी सड़ा हुआ हो, तो आने वाली जो नस्ल है महा सड़ी हुई, दुनिया चोरों से भर जाएगी, दुनिया डकैतों से भर जाएगी, दुनिया होंडों से भर जाएगी। हमने शादी में सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, हुजूर की तालीम को ताक पे रखा। मेरा बेटा होंडा, मेरा बेटा डकैत, मेरा बेटा माँ बाप का नाफरमान, मेरा बेटा मेरी छाती पर बैठकर ब्लैंक चेक पे साइन करवाने वाला, चूंकि हमने ही उनकी गुट्ठी में पिलाया है। क्या पिलाया है? फला डॉक्टर बना, 5 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, फला इंजीनियर बना, बंबई में 5 का मकान खरीद लिया, फला आदमी नेतागिरी की, उन्होंने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में जमीन मकान खरीद लिया, उन्होंने बंबई जाके पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, उन्होंने बेंगलोर में शानदार फ्लैट खरीद लिया। तो हमने बच्चों के दिमाग में यह बताने की कोशिश की कि पढ़ने का मकसद मकान खरीदना, पढ़ने का मकसद बंबई में कारोबार कर लेना, पढ़ने का मकसद जितना पैसा हो पैसा कमाना ताकि इज्जत मिलेगी। तो अब वो बच्चा अपने बाप की छाती पे चढ़ के बोलता है, फला बाप अपने बेटे को 10 करोड़ छोड़ के मरा, तुम कितना छोड़ के मर रहा है? फला बाप अपने बेटे को 25 लाख की कार छोड़ के मरा, तुम कौन सी कार मेरे लिए छोड़ के मर रहा है? इसका 100% जिम्मेदार वो बाप है जिसने अपने बेटे की घुट्टी में माल की मोहब्बत पिलाया है और दीन की मोहब्बत नहीं पिलाया। वह बाप बोला मौलाना से दूर रहना, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, चक्कर में रहेगा तो जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो जवानी ही में पंजाबी पायजामा पहना के बूढ़ा बना देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ा तो 5 टाइम नमाज के लिए मस्जिद में दौड़ाएगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हमने कहा मौलाना को सलाम कर लेना सिर्फ, बस उसके आगे उनके पास बैठना नहीं, वरना हदीस बता देगा और जवानी में बूढ़ा कर देगा। तो अब वो बच्चा उसका बाप से कहता है फला बाप ने अपने बेटे को 50 करोड़ रुपए छोड़ के मरा, 5 बेटों पे इतना पैसा बटा, तुम कितना छोड़ के मर रहा है? अब बोलता तुम जालिम है, तुझको अल्लाह माफ नहीं करेगा। उनकी कब्र पे जाके उनका बेटा बोलता इस बेईमान बाप को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो हमारे बड़े भाई को अच्छी जमीन दे दी और मुझको बैक की जमीन दे दी। तो जमीन भी 2 करोड़ों की और जालिम भी कहलाओ और उसके तमाचा भी खाओ और उसकी आंख का भी सामना करो, मरने के बाद कब्र पे जाके लाठी मार के जालिम भी उसकी जबान से कहलाओ। ये 100% कसूर हमारा है कि मैंने अपने बच्चों को आलिमों से दूर रखा, हदीस और कुरान से दूर रखा। अगर हम बच्चों को बताते कि आलिम के पास जाओ, दीन सीखो, और आलिम से बोलता माँ बाप का चेहरा दिन में 100 बार देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिल जाएगा, माँ की पेशानी को बोसा देगा तो जन्नत की चौखट के चूमने का लुत्फ आ जाएगा। जन्नत माँ के पाँव के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो वह बेटा चाहे बाप उसको कुछ न दे, मगर जन्नत के शौक में बाप की पेशानी को चूमता है, बाप के पाँव को बोसा देता है। अगरचे बाप उसको कुछ न दे, उनके मरने के बाद बाप की कब्र पे जाके कहता है मालिक मेरे बाप को बख्श दे, इसने जमीन मकान तो नहीं दिया है, अलबत्ता ईमान और तकवा की दौलत अता कर गया है। तो बेटा बाप की कब्र पे जाके रात में सन्नाटे में आंसू बहाता है। अगर बेटा को अगर नेक बनाया गया, आलिमों की सोहबत में रखा गया, तो ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं पेश आएगी। बेटा बाप को अपनी निगाहों के सामने रखेगा और कहेगा कि आप जिंदा रहे ताकि रोजाना मुझको 100 हज मबरूर का अज्र मिलता रहे। अगर बेटे को दीन से करीब किया तो समाज दीनदारों से भर जाएगा, समाज नमाजी से भर जाएगा, समाज अच्छों से भर जाएगा। अगर आपने आलिमों से नफरत दिलाई, समाज डकैतों से भर जाएगा, समाज चोरों से भर जाएगा, समाज गुटखाखोरों से भर जाएगा। इसलिए कि कानून से हट के कुछ नहीं होता है, एक नेचुरल सिस्टम है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आम के पेड़ में 50 लाख तावीज बांध दें, वहां से सेब नहीं निकलेगा। आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है। मैं चाहे 1001 करोड़ तावीज गेहूं के खेत में डाल दूं, गेहूं का बीज डालने के बाद यहां से बासमती चावल पैदा हो, नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, मगर अल्लाह का कानून है, दुनिया सारा एक नियमानुसार चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। यानी पाकी बयान करो उस रब्बे आला की जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है, आंख बंद करके नहीं, मजनू बन के नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं नहीं, अक्ल दी है अल्लाह ने, सोचने की सलाहियत दी है, एक सिस्टम के हिसाब से सारा काम चल रहा है।
اللہ چاہے تو 1 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے، لیکن نہیں، ایک سسٹم ہوتا ہے 4 مہینے تک، پہلے اس میں 40 دن تک خون ہے، اس کے بعد لوتھڑا ہے، اگلے 40 دن تک ڈھانچہ ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، پھر 6 مہینے تک میچور ہونے کے لیے ماں کے شکم میں رکھا جاتا ہے، تاکہ دنیا میں آنے کے بعد یہاں کی گرم کلائمیٹ کو سہنے کی چھمتا اس کے اس اسکن اور چمڑے کو ہو جائے، تب 6 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بیچ میں بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں تولد ہوتا ہے۔ ایک نیچرل سسٹم ہے، اللہ چاہے تو 21 دن کے اندر بچہ پیدا ہو جائے، جیسے مرغی کا بچہ ہے، وہ انڈا ہے، مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے، 21 دن کے بعد جو اس کے اندر بچہ ہے وہ اس کے کھول کو توڑ کر کے بچہ باہر نکل جاتا ہے، اور پھر چند ہی گھنٹے میں وہ بچہ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جانور تو چند گھنٹے میں چلنے پھرنے لگے، اور یہ انسان کو 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں چلنے پھرنے میں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور دنیا کا سب سے اشرف ہے، تو اشرف کا سارا کام گریجولی ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایک قانون کے تحت سارا کام ہوگا۔ اس سے ہٹ کے جو کام کرے گا اس کو اس دنیا میں منہ کی کھانی پڑے گی، اور دنیا پاپ سے اور گندوں سے دنیا بھر جائے گی۔ اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے اچھی عورت کا سلیکشن کرنا، تاکہ وہ زمین ہے اور تم اچھا بننا، اس میں بیج ڈالنے والے ہو۔ جب بیج اچھا ہوگا، زمین اچھی ہوگی، تب وہاں سے شاندار فصل پیدا ہوگی۔ کشمیر کی زمین سیب کے لیے خاص ہے، وہاں باسمتی دھان نہیں ہوتا ہے۔ بہار کی زمین دھان کے لیے خاص ہے، وہ اخروٹ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بمبئی کی زمین کپاس کے لیے اور گنا کے لیے خاص ہے، وہاں باسمتی دھان نہیں ہوتا ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا کی زمین دھان کے لیے، مچھلی پالن کے لیے مشہور ہے، اور دوسرے حصے میں ریگستان اور راجستھان میں وہ فصل پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کتب پیدا کرنے والی زمین چاہیے، ابدال پیدا کرنے والی زمین چاہیے، متقی پیدا کرنے والی زمین چاہیے، صالح پیدا کرنے والی زمین چاہیے، شہید جنم دینے والی زمین چاہیے۔ ہاں، جب زمین ہو فاطمہ جیسی، جن کے سر کا آنچل نہ کھسکا، نہ ان کے چہرے کو اجنبی مرد نے دیکھا، یہاں تک کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نصرت پہ لاکھوں سلام، یعنی جس کی کلائی نہیں کھلی، آسمان کا سورج جس کے سر کے بال کو نہیں دیکھا، اس قدر پردے میں رہنے والی، یہاں تک کہ وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو مجھ کو رات کے وقت میں دفن کر دینا۔ کیوں؟ جس فاطمہ کو زندگی میں اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ کی ڈیڈ باڈی پر بھی غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ مجھ جیسا مولوی آج اس کی ماں مر جاتی ہے تو 10 مسجدوں میں مائکرو فون سے اعلان ہوتا ہے فلاں امام صاحب کی ماں مر گئی ہے، کل دن کے 2 بجے ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا، کثیر تعداد میں شرکت کیجیے۔ یعنی میری ماں مرے تو 50 مسجدوں سے اعلان ہو، دنیا کی ساری ماؤں کی سیدہ، ساری ماؤں کی سردار، ساری ماؤں کی ملکہ، جنتی خاتون کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ ان کے جنازے میں تو 1 لاکھ صحابہ جو موجود تھے وہ سب کے سب آ جاتے تاکہ جنازے سے برکت حاصل کریں، مگر فاطمۃ الزہرا کی سوچ دیکھیے، ان کی سوچ تھی مولا علی کو وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں مجھ کو رات میں آپ دفن کر دیں گے۔ رات میں دفن کرنے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ جس فاطمہ کو زندگی میں اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا، ان کی لاش پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑے۔ یہاں خاتون مر جاتی ہے اور گاؤں کے سارے اجنبی مرد کا تانتا لگ جاتا ہے ان کے چہرے کی زیارت کے لیے، کہ رونمائی کے لیے جنازہ رکھا گیا ہے، آئیے ان کو دیکھیے۔ اجنبی اور مرد کا، اجنبی عورتوں کا چہرہ دیکھنا نہ زندگی میں درست تھا اور نہ مرنے کے بعد ان کا پردہ ہے، پردے میں رہے۔ فاطمۃ الزہرا کو رات کے وقت میں 8-10 لوگوں کی موجودگی میں دفنا دیا گیا۔ کئی لاکھ کا مجمع جمع ہوتا، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے مکہ مدینہ اور اطراف کے، وہ سب چلے آتے، یہاں تک کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین ہے، جو مسلمانوں کے امور کے والی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی خبر تک نہ ہوئی، رات میں ہی دفن کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو مولا علی سے صدیق اکبر نے کہا، علی آپ نے مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ آپ نے خبر کیوں نہیں کی؟ سیدہ کے جنازے میں بھی تو حاضر ہو جاتا، جبکہ مسلمانوں کے امور کے وہ مالک تھے، والی تھے، وہ شریک ہو سکتے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا گیا اور رات ہی میں اپنے گھر کے چند مخصوص لوگوں کی موجودگی میں جنازے کی نماز ہو گئی۔ شہرت میں جینے والا، ناموری میں جینے والا، ریاکاری کرنے والا، تصنع اور بناوٹ سے کام لینے والا، تیجا اور چہارم اور 40واں اور برسی میں 1 لاکھ ختم قرآن، جبکہ 1 ختم قرآن بھی قاعدے سے نہیں پڑھا گیا ہے۔ پڑھنے والا کیسے لوگ ہیں، پڑھنے والا کیسے بچے ہیں، سبوں کو معلوم ہے، مگر صرف ایک نمائش کا نشہ ہے کہ ساتھ ایک سب
मतलब 1000 खत्म कुरान हुए, 50 खत्म कुरान हुए, 100 खत्म कुरान हुए, इखलास खत्म हो गया। नुमाइश ने मेरी जिंदगी को कड़वा और तल्ख बना दिया। इसलिए हर चीज में नुमाइश, जनाजे में नुमाइश, साहब चारों तीजा में नुमाइश। कहीं हम नहीं चाहते कि कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर जाए। वो तो अहले बैत मुस्तफा है जिन्होंने वसीयत की कि रात में मुझको दफन कर देना। जिस फातिमा ने अपनी लाश पर अजनबी मर्दों की नजर न पड़े इसका एहतमाम किया। जब माँ इसी लाजवाब हो, दिन में अपने बच्चों की तरबियत करने वाली, कपड़े साफ करने वाली, चक्की पीसने वाली, रोटी खुद से बनाने वाली, यहाँ मेरे पास अगर कुछ पैसे आ जाएं तो कपड़ा धोने वाली नौकरानी अलग, पोछा लगाने वाली अलग, झाड़ू देने वाली अलग, खाना बनाने वाली अलग। और हम क्या करेंगे? हमारी माँ क्या करेगी? सिर्फ खाएगी और सोएगी। और जो किचन में ही जाएगी, जो पोछा नहीं लगाएगी, जो कपड़े नहीं धोएगी, तो उसको एक दिन में 5 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि सोते सोते कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तनफ्फुस की बीमारी हो गई है, सांस नहीं ले पाता है, दाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है, 105 केजी वजन हो गया है। अब ब्लड प्रेशर, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर है, और साफ शुगर है, हार्ट की बीमारी है, गठिया जोड़ जोड़ का दर्द है, लीवर डैमेज हो गया है, यानी सारा जिस्म बीमारी का घर बन जाएगा। सैयदा फातिमा की पैरवी में जन्नत तो हाथ में रहेगी ही, साथ में सेहत भी रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, सच्ची खुशी रहेगी। और सेहत का फार्मूला है एक्टिव रहना, सेहत का फार्मूला है स्ट्रगल करना, सेहत का फार्मूला है जद्दोजहद करना। सेहत का राज है जो जितना ज्यादा भाग दौड़ करेगा उतनी ही ज्यादा सेहत अच्छी रहेगी। जो बाजार जाए सब्जी लाने, जो खेत जाए काम करने, नहीं खेत का काम है सब्जी लाने का काम है, अब नमाज 5 वक्त पढ़े और एक्स्ट्रा 50 रकत नमाज नफल पढ़े ताकि पसीने में सारा बदन शराबोर हो जाए। 1 लाख की शुगर की गोली एक तरफ, 50 रकत नमाज नफल पढ़ के पसीना बहाना एक तरफ। रामदेव की बातों पे आज गैर मुस्लिमों की औरतें अमल कर रही है। वो सुबह के 4 बजे उठकर वो टहलती है ताकि वो हेल्दी रहे। उनका जवान दौड़ता है 5 किलोमीटर ताकि हेल्दी रहे, जल्दी सो जाता है ताकि हेल्दी रहे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमारा जवान है, आलिमों का अदब नहीं, जलसे का अदब नहीं, मोबाइल चला चला के रात के 2 बजे सोना है और दिन के 10-11 बजे उठना है। और जब सेहत में आग लगती है तो तावीज के लिए आमिलों के पास जाके दौड़ना है। और आमिल जो अली पा तक ठीक से ना पढ़ सके 50 लाख की कार पे चल रहे हैं, क्योंकि जैसी कमाई जैसा मुवक्किल वैसा आमिल रहता है। बुखारी पढ़ाने वाले के पास कोई जाता नहीं, इमाम साहब को कोई नजरा जुमा के दिन देता नहीं, तो जैसे मुवक्किल वो आमिल डराता है तेरे घर में कुछ करके डाल दिया है, देखो तुम्हारा दम 10 कदम चलता है तुम फूलने लगता है, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरी बेटी मर जाएगी, और चारों आदमी 1 साल के अंदर मर जाओगे, सारा घर उजड़ जाएगा, तेरी जमीन पे दूसरे का कब्जा हो जाएगा। इतना बड़ा काला जादू करके गाड़ दिया गया है। कहा हजरत कैसे होगा? कहां होगा, किसका समाधान दुनिया में नहीं है, होगा 50,000 रुपए खर्च पड़ेंगे। मैं उस काला जादू को अपने अमल से निकाल के फेंक दूंगा, तू बचेगा, तेरा बेटा बचेगा, तेरी बीवी बचेगी, तेरी बेटी बचेगी, घर बचेगा। जो आदमी 5 रुपए जलसे में चंदा नहीं दिया, मस्जिद में नहीं दिया, 50,000 रुपए जहां तहां से इंतजाम करके उस झूठे आमिल को देता है, और वह बोलता चलो मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया, अब भला चंगा रहो, आराम से रहो। तो जिसका पैसा राहे हक में न जाता हो उसका पैसा इसी तरह इस तरफ जाता है। एक्टिव सेहतमंद रहने के लिए जल्दी से इशा के बाद फौरी सो जाइए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़िए और जल्दी सोइए, जल्दी उठ जाइए। फजर की नमाज से पहले उठिए, उस वक्त फरिश्ता आता है, रोजी लेके आता है, रहमत लेके आता है। अल्लाह के नेक बंदों के इस्तिगफार का टाइम है। वयस्तगफिरून बिल असार वल मुस्तगफिरीन बिल असार वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामा। मौलवी साहब बोलता जल्दी तकरीर खत्म कर, 10 बजे रात बनाई गई है सोने के लिए, मगर वह सिर्फ एक ही बात पढ़ता है वल्लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया, और ये नहीं पढ़ता है कि वो उनको तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिह यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, यानी अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे हैं जिनकी करवटें रात को बिस्तर से अलग हो जाती है। वो अल्लाह के जिक्र के लिए और रोने धोने के लिए और खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। जो रात भर सजदे और क़याम में गुजारता है वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामा, इसका मतलब ये निकला एक जनरल आदमी के लिए कानून है, वह जल्दी खाएं, सो जाएं, सुबह फजर पढ़ लें। मगर अल्लाह के मखसूस बंदे के लिए है कि वह रात भर एक सजदे में गुजार दें, रात भर खुदा की रहमतों के तलबगार रहें, रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करें, नेकी का पुतला फिर भी रोएं धोएं। अल्लाह को पसंद है मर्द मोमिन की आंख का आंसू का कतरा, और यही काम अहले बैत अतहार के बच्चे में कूट कूट के भरा था।
रात का आखिरी पहर में उठना, तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह के खौफ से रोना, आंसू बहाना। सैयदा फातिमा का तो एक ही सजदे में रात का गुजर के सहर का आ जाना, फजर की अजान का हो जाना। हमने सिर्फ कहानी सुनी है, अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? रात के 2 बजे तक टेलीविजन देखना, मोबाइल चलाना और दिन के 10 बजे सोना। कुत्ते रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं और सहरी के टाइम में राख और ढेर पे सो जाते हैं, बीच रास्ते में सो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा है रात भर हुल्लड़बाजी करना, जागना और हुल्लड़बाजी करना कुत्तों का काम है, और फरिश्तों की आमद की घड़ी में सो जाना ये कुत्तों का काम है, और मूर्ख का काम है रात भर खामोश रहना। और सहरी के टाइम में जब फरिश्ते उतरते हैं आसमान से जमीन पर, उसको देखकर मुर्ग बांग देने लगता है। मुर्ग का बांग देना ये अल्लाह की तस्बीह है। तो तुम्हारा काम मुर्ग से मिल जाए, तुम्हारा काम फरिश्तों के साथ मिल जाए। अगर ये चाहते हो तो रात में जल्दी से सो जाओ और सहरी के टाइम में उठ जाओ, ताकि तेरा काम फरिश्तों से मेल खाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो किससे मेल खाता है वो अच्छी तरह समझ सकते हो। और आज समाज कैसे लोगों से भर गया है, न माँ को ख्याल है न बाप को ख्याल है अपने बच्चों की मुस्तकबिल का। और ये बता नहीं चलो बड़ा होने के बाद ठीक हो जाएगा, अपने से सीख लेगा, बड़ा होने के बाद संभल जाएगा, वह सब भले बुरे की पहचान कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप को तरबियत के लिए इतना जोर क्यों दिया गया? सरकार दो जहां ने इतनी अहादीस बच्चों की तरबियत के लिए क्यों बयान फरमाई? और हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ क्यों किया? क्योंकि मालूम है कि कोई चीज ऐसा नहीं होता है कि हम सिस्टम के खिलाफ काम करें और रिजल्ट सिस्टम के मुताबिक हो जाए, नहीं होता है। बरसात के जमाने में घर में बैठे रहे और अगर के मौसम में बिल्कुल धान का ढेर मेरे घर में हो जाए, नहीं होता है। मैं घर में बैठ के रहूं और शाम के टाइम में 10,000 मेरे घर में आ जाए, नहीं होता है। मैं घर में बैठ कर रहूं और अजमेर चला जाऊं, गरीब नवाज की चादर पकड़ के मैं 40 दिन का चिल्ला करूं या सोच करके मैं डीएम बन जाऊं, नहीं होता है। डीएम बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर दुआ करनी पड़ेगी। पहले मेहनत, फिर अल्लाह की तकदीर पर भरोसा, अल्लाह से दुआ। इधर से मेहनत जाएगी, उधर से खुदा की रहमत आएगी, और जहां दोनों मिल जाए वही बंदा कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि उस्ताद का कपड़ा धोएं, उस्ताद का पांव दबाएं, उस्ताद के सर में तेल लगाएं, उस्ताद के खैनी लटाएं, उस्ताद का पान लगा के दें, उस्ताद का गुटका फाड़ के दें और सारा सबक याद हो जाए, नहीं होता है। बल्कि 2 घंटे सबक याद करना है और 5 मिनट का टाइम निकाल के उस्ताद की खिदमत भी करनी है। उधर से मेहनत, इधर से खिदमत, या दोनों मिलके जाएंगे तब बच्चा मुफस्सिर बनता है, तब मुहद्दिस बनता है, तब खतीब बनता है, तब अच्छा व बासलाहियत इमाम बनता है। ऐसा नहीं सिर्फ लुंगी धोने से बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाता है। जितने लोगों की जिंदगी है, सबकी जिंदगी में मेहनतों का दखल है। सरकार गौसे आजम ईरान से चल के बगदाद गए, सैकड़ों असातिज़ा के दरवाजे पे जाके इल्म सीखा। वो तो मादरजाद वली थे, वो तो बचपन ही में अपने घर की छत से वो मैदान अरफात के हाजियों का मंजर देख लिया था। वह तो माँ के पेट ही में पेट ही से अल्लाह के वली बन के पैदा हुए थे। वह माँ की गोद में दूध नहीं पिया था, यहाँ तक कि अगले साल चांद का मसला हुआ तो लोगों ने कहा कि माँ पिछले साल जो बच्चा तबल्लुद हुआ था वो दिन भर दूध नहीं पिया है। तो गौसे आजम की इस मिसाल को लोगों ने लेकर के उन्होंने उसकी चांद की तहकीक शुरू की, तो पता चला कि वाकई आज चांद हो गया है। चूंकि सुबह से दूसरे साल अब्दुल कादिर जिलानी ने चांद नहीं, उन्होंने दूध नहीं पिया है। क्या मतलब है? वो तो मादरजात वली थे, लेकिन रात भर चिराग जला के आंख को जलाना, किताबों को पढ़ना, असातिज़ा की तहलील पे जाके सो जाना, उनके बाहर निकलने का इंतजार करना, फिर उनसे सबक पढ़ना, एक लंबी उम्र तक दरसियाती किताबों पे महारत हासिल करना, फिर अगले 25 साल तक दरियाओं सहराओं में जाके वहां गिरी पड़ी सब्जी भूख लगी खा लिया, फिर खुदा की मार्फत का नूर हासिल किया। इसका मतलब है महान बनने के लिए जो नेचुरल सिस्टम है दुनिया का, उसका फॉलो करना पड़ेगा। मालदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साहब दीनदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जन्नत जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक लंबी तमहीद बयान की सिर्फ इसीलिए कि नेचुरल सिस्टम है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा। वह मौला अली यहूदी के कुएं से पानी खींचते थे, उनके खेत में सिंचाई करके उससे 2 सिक्के जो मिलते उससे अपने बाल बच्चों को पालते थे। फातिह खैबर अली, मुश्किल कुशा अली, फातिह खैबर अली, खंदक के बादशाह अली, जिन्होंने मैदान बद्र में, मैदान उहद में, खैबर व खंदक में, ग़ज़वा हुनैन में, तमाम ग़ज़वात में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ऐसी बहादुरी कि आला हजरत की जबान में पहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, यानी मौला अली जिस मैदान जंग में जाते दुश्मनों की तलवारों का सर मौला
अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। वो फातेह खैबर अली, दिन में जिहाद है, रात भर सजदे में रात गुजार देना है और हलाल रोजी की तलाश के लिए इस तरह इसके हलाल ढूंढना है। यहाँ मस्जिदों के माल को लूट के खाने वाला वो क्या जाने मौला अली कौन है, मदरसे का नाजायज माल खाने वाला वो क्या जाने मौला अली कौन है, वह बुज़दिलों नामर्दों की तरह करने वाला उसे क्या खबर कि मौला अली किसका नाम है। सिर्फ नाम ले ले करके सर कूटने से काम नहीं चलेगा। मौला अली फातेह खैबर है, मौला अली दामाद मुस्तफा है, मौला अली मुश्किल कुशा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जाओ मैंने तुझको तलाक दिया, जाओ मैंने तुझको तलाक दिया। किसी ने पूछा हुजूर किसको तलाक दिया, कहा दुनिया सज धज के आई थी, मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। दुनिया बोली मुझे कबूल कर लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा से रहिए। मौला अली ने कहा नहीं नहीं, मैंने तुझको तलाक दे दिया, मैंने तुझको तलाक दे दिया। मौला अली ने दुनिया को तलाक दे दिया। मोटे छोटे पे रजामंद हो गए, रूखे सूखे पे रजामंद हो गए और पूरा और फिर सादगी पे रजामंद हो गए। क्योंकि मौला अली ने बचपन से मुस्तफा की सादगी को देखा था, बचपन से सरकार दो जहां की लाइफ को देखा था, हुजूर की तरबियत में आप थे, इसीलिए उन्होंने सादगी को इख्तियार किया और पेचीदगी की दलदल में अपने आप को धंसने से बचा लिया। मौला अली ने दुनिया को तलाक दिया। एक सैयद साहब आला हजरत के पास हमेशा आते थे और गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे हुजूर की वजह से। सरकार का शहर काबिल एहतराम, हुजूर की अहले बैत काबिल एहतराम, हुजूर की औलाद काबिल एहतराम। तो हुजूर की औलाद क़यामत तक जो भी सादात में से हो, अगर वो सैयद हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। एहतराम का मतलब ये नहीं है कि वो बोले चलो सिनेमा देखने के लिए हम सिनेमा देख लें, वो बोले नमाज छोड़ दो हम नमाज छोड़ दें। नहीं नहीं, हम उनका पांव चूमेंगे, पेशानी को बोसा देंगे, लेकिन अगर दाढ़ी उसकी कटी भी रहेगी, हद शरा तक न रहेगी, तो हम बोलेंगे सैयद साहब आप पीछे रहिए। ये अंसारी का बेटा जिसे दुनिया जोलाहा कहती है, ये आलिम है, मुत्तकी है, हद शरा दाढ़ी है, ये आगे बढ़ के नमाज पढ़ाएगा, इमाम बनेगा। आपकी नाना की शरीयत के मुताबिक आप इमाम बनने के अहल नहीं है। हाथ चूमना और है, इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होना और है, एहतराम सादात और है। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। अगर माँ बोले शराब पी, नहीं बात मानी जाएगी। बाप बोले सिनेमा देख, नहीं माना जाएगा। पीर बोले ये गुनाह कर, नहीं माना जाएगा। सैयद साहब बोले ये काम कर, नहीं माना जाएगा। मुस्तफा की अल्लाह की नाफरमानी में किसी बंदे की बात नहीं मानी जाएगी। बंदे की इज्जत अलग है और उनकी हर बात को मानना अलग है। माँ का एहतराम अलग है और माँ अगर गुनाह करने के लिए कहे, माँ की बात नहीं मानी जाएगी। इसे अब बहुत साल आंख बंद करके अपने मुर्शिद के नक्शे कदम की पैरवी करते हैं, चाहे मुर्शिद उसको जो भी कह दे। नहीं, यही तो तुर्रे इम्तियाज है मजहब इस्लाम का। दूध का दूध, पानी का पानी, ये हमें फर्क सिखाता है राइट और रॉन्ग में, और जायज और नाजायज में, लीगल और इलीगल में। मौला अली इतने बड़े थे कि जिन्होंने दुनिया को तलाक दिया। सैयद साहब आला हजरत के पास आके बार बार गरीबी की शिकायत करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, एहतराम में कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन देखा जब बार बार ये शिकायत करते हैं, अपना कलम रोक दिया। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का मोहसिन, मुस्लिम, मुजद्दिद, जिनकी किताबें आज 100 साल के बाद भी दुनिया भर में हमारी रहनुमाई करती हैं। मुनाजरे में वहां दलील दी जाती है, वहां तकरीर नहीं। आज किताब इल्म गैब पर मुनाजरा हो तो दलील आला हजरत की लाइब्रेरी से आती है। मुनाजरा हो इल्म गैब पर ऑस्ट्रेलिया में तो किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाती है। इसलिए 100 साल गुजर जाने के बाद जहां देखिए वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। क्यों? इसलिए कि रजा की 1000 से ज्यादा किताबें आज भी कदम कदम पे मेरी रहनुमाई करती है और मुझे राह रास्त दिखलाती है। जब तक वो किताबें रहेंगी तब तक उनका नाम, उनके नाम, उनकी अजमत का डंका बजता रहेगा। सिर्फ बोली नहीं देखी जाती है, इस्लाम की खिदमतें देखी जाती है। आला हजरत ने कलम रोक दिया और कहा सैयद साहब एक बात बताइए, इस्लाम का मसला है अगर बाप किसी को तलाक दे दे, क्या उस खातून से बेटे का अक्द करना दुरुस्त है? सैयद साहब ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। कहा सैयदों के बाप मौला अली, जिन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया हो, फिर उससे अक्द करना उनकी औलाद के लिए दुरुस्त है। आला हजरत हकीम थे, हिकमत भरा जुमला बोला, सैयद साहब समझ गए। जब तक वो जिंदा रहे आला हजरत के पास आते रहे, मैं फिर दोबारा कभी गरीबी की शिकायत नहीं की।
जहां 50 घंटे की तकरीर रंग नहीं लाती हो, वहां आला हजरत का एक हकीमाना जुमला आदमी की फिक्र में इनकलाब पैदा कर देता है। यही है आला हजरत में हजरतों की सारी जिंदगी गुजर गई, एक आदमी को राह रास्त पर न ला सका। आला हजरत वो तो एक जुमला एक आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं मौला अली शेर खुदा फातह खैबर है। सादगी, हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब रुपए से बेहतर है। मौला अली ने ये मसाज दिया। आज हराम खा खा करके 50 उम्रा करने वाला, 25 हज करने वाला वह भूल जाता है कि हराम कमाई पेट में जाए अल्लाह कोई दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुआओं को रद्द कर देता है। अगर जिस्म में 1 बूंद शराब दाखिल हो जाए 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होती। उसी हालत में मर जाए तो जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाती है। शराब पे शराब ठोकने वाला, माले हराम झूठ बोल के कमाने वाला वह 50 उम्र पे जा रहा है, नहीं होगा। दुआएं कबूल होंगी मोहल्ले की मस्जिद में। हज अगर फर्ज नहीं है तो काबा जाने का जुनून क्यों दिमाग में पाल रहा है? अगर हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ करेगा, हराम खाकर काबा में दुआ करेगा, वो दुआ रद्द हो जाएगी। और हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा, वो दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कैसा शर्त है, और दुआ की कबूलियत के लिए अपनी खातून बीवियों और बेटियों का पर्दे में रहना शर्त है। आया है किताब में, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाती हो। एक तरफ बेपर्दगी, एक तरफ हरामखोरी, कुछ भी हो समाज में स्टेटस बचना चाहिए, समाज में इज्जत रहना चाहिए, समाज में अभी कम से कम अपना भरम रहना चाहिए, चाहे मरने के बाद जहन्नम ही में क्यों न जले, अभी स्टेटस बचना चाहिए। उसे अली का नाम नहीं लेना चाहिए। मौला अली ने उन्होंने फाके को कबूल किया, पर हराम की आमेजिश और हलाल तरीके से भी दुनिया की फरावानी को कबूल नहीं किया। जो और मौला अली इस कदर हसास हो, रात भर सजदा और दिन में जिहाद, जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी, तब नेचुरल सिस्टम के मुताबिक बेटा शहीदों का सरदार हुसैन पैदा होता है, हसन पैदा होता है। जब बाप हो सैयद मूसा जंगी दोस्त जैसा और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकियों का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा साहिद और आबिद, और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठ के सजदा करने वाली, तब उसी का बेटा 99 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता है। जब माँ हो सैयदा जुलेखा जैसी 80 साल की उम्र में भी सर से आंचल न खिसका हो, और बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, उसी का बेटा कुतुब दिल्ली महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नबी अली खां जैसा और माँ हो आबिदा, तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, हुज्जतुल इस्लाम काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, मुफ्ती आजम हिंद को डके देखे तो वली हो जाए, और बाप साहिद लाखों मुरीदों का मुर्शिद मुत्तकी बनकर जिंदगी गुजारने वाला, और माँ ऐसी आबिदा के जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तरखा दिलाने वाली। जब माँ हो ऐसी तकवा शहर, और बाप हो जाहिद, और दादा हो लाजवाब हुज्जतुल इस्लाम जैसा, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा, उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजो शरिया पैदा होता है। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहा है हुसैन जैसा बहादुर दुनिया को कैसे मिला, हसन जैसा बहादुर दुनिया को कुर्सी को कुर्बान कर देने वाला, दुनिया को पांव के नीचे ठुकराने वाला किसने दिया? मौला अली की करामत है, फातिमा ज़हरा की अता है, और उसकी तरबियत में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का दखल है। तो अब जब इमाम हुसैन जवान होते हैं, जवानी में हर कदम पे उसी तरबियत के आसार नुमाया होते हैं, उसी तरबियत की झलकियां हर कदम पे देखने को मिलती है। एक बार हाथ उठा के बोले जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं बंद कर देता हूं खिताब को। अगर वही खिताब चाहिए आपको किस्सा कहानी वाली, तो मैं बंद कर दूं खिताब में, छोड़ दो, बस मेरा बहुत काम हो गया। जब आप पसंद ही नहीं कर रहे, आप बोल ही नहीं रहे, मैं साहब पसीना में निचोड़ रहा हूं। वो कहानी और किस्सा सीना तोड़ना, सर के बाल नोचना तो दिन रात सुनते ही रहते हैं। हाय सकीना, हाय असगर, हाय अली, हाय अब्बास, तो दिन रात सुनता ही रहता है। अब्बास है किसका नाम, हुसैन है किसका नाम, ये तो सुन ले, ये कौन सुनाएगा तुमको? इमाम
इमाम हुसैन की जिंदगी से पैगाम मिलता है हक पे जीने का, हक पे मरने का। इमाम हसन ने कुर्सी को त्यागा, इमाम हसन ने दुनिया को त्यागा, यहां तक कि आज की तारीख में बेटा मर जाए आदमी सह लेता है, मगर कुर्सी नहीं छोड़ता है, तख्त नहीं छोड़ता है, वह सल्तनत नहीं छोड़ता है। मगर इमाम हसन उस योद्धा का नाम है। 40,000 से ज्यादा अरब आपके नाम पे जान देने को कुर्बान है, लेकिन इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में शर्तों के साथ दे दी। मालूम है क्यों दे दी? इमाम हसन सबसे बड़े शहीद इस माना कर है, उन्होंने जान की नहीं, उन्होंने हुकूमत की कुर्बानी दी है, उन्होंने सत्ता की कुर्बानी दी है, उन्होंने सल्तनत की कुर्बानी दी है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने कहा यह शेम है, शेम, यह आरुल मुस्लिमीन है, ये आरुल मुस्लिमीन है। क्या आरुल मुस्लिमीन है? यानी 40,000 अरब जान देने को तैयार है, फिर भी इन्होंने अमीर मुआविया को हुकूमत दे दी और मदीना आ गए। इन्होंने ये जान बचा के आ गए। ये आरुल मुस्लिमीन है, ये आरुल मुस्लिमीन है। जरा गौर से सुनिएगा, शेम शेम शेम, आरुल मुस्लिमीन है ये। लोगों ने कहा अगर मुझको आज कोई मेरे खिलाफ कोई एक जुमला बोले, मेरे खिलाफ, मेरे इमाम के खिलाफ, मेरे पीर के खिलाफ, तो हाल क्या होता है कि हम नंगे हो जाते हैं। अखलाक को तो सारी हदों को फलांग कर सामने वाले को जलील करना अपनी जिंदगी का मकसद हम बना लेते हैं। नानी नफ्स को जो बात नागवार गुजरे। इमाम हसन को क्या कहा लोगों ने? ये आरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए शर्म है। ये इतने लाख, इतने हजार मुसलमान इनके नाम पे जान देने को तैयार है, और ये अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी और मदीना पाक आ गए। इमाम हसन ने क्या कहा? पंचायती कर दो, 10 लोगों को लेकर मैं बैठ जाऊं, क्यों तुम मुझको ऐसा कहता है? इमाम हसन ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह आरो खैरुम मिनन नार। इमाम हसन क्या कहते हैं? ये आर जिसको तुम कहता है, ये आर नार से बेहतर है। यानी दुनिया की बेइज्जती आखिरत की बेइज्जती से बेहतर है, या दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी से बेहतर है। या एक जुमला नहीं है, 1 करोड़ हिकमतें पोशीदा है। चंद लाख रुपए रिश्वत देकर नौकरी लेना और सारी जिंदगी उस हराम की नहुसत से दोचार रहना। अगर इमाम हसन का जुमला उसके दिमाग में रहता, वह सारी जिंदगी मस्जिद में अजान देकर 5,000 रुपए माहाना कमाकर बाल बच्चों के पाल के वह मर जाता, लेकिन वह 10 लाख रुपए हराम रिश्वत देकर वह नौकरी नहीं लेता। क्योंकि इमाम हसन ने कहा कि दुनिया की बेइज्जती आखिरत की बेइज्जती के मुकाबले में हल्की है। असल बेइज्जती वहां की, असल रुसवाई वहां की, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और दुनिया का एक दिन 100 साल उसके मुकाबले में कितना है? 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड के लिए हरामखोरी, 1 सेकंड के लिए रिश्वत, 1 सेकंड के लिए झूठ, 1 सेकंड के लिए दूसरों की प्रॉपर्टी पे गासिबाना कब्जा, 1 सेकंड के लिए इस तरीके से बेएहतियातियां, 1 सेकंड की नमाज छोड़ छोड़कर चंद सिक्के कमाना। वो अपने आप को हुसैन का नाम न ले, उसकी इस नापाक जबान से पाक हुसैन का लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। इमाम हसन भूखा रहा, भूखा रहे, अपनी दौलत को जिंदगी में 3 बार सारी प्रॉपर्टी उन्होंने एक सुई तक घर में नहीं रखा, वह सब खैरात कर दिया। जिंदगी में कई बार आधी जायदाद, यानी आधा अपने लिए आधा रब की राह में, और 3 या 2 बार सारी प्रॉपर्टी सुई तक नहीं रखा, सब राह खुदा में खैरात कर दिया। यह सोचना नहीं कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, परसों मेरा बच्चा क्या खाएगा। इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकल में बताया कि अल्लाह पर विश्वास करने वाला वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह का वादा है, 1 खर्च कर मैं तुझे 10 दूंगा। तो हमको तो लगता है कि खर्च करेंगे, देगा कि नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा, ये बेएतमादी हमारे सीने में है। मगर वह हुसैन थे, वह इमाम हसन थे, अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन था, सारा माल राह खुदा में खैरात कर दिया। क्या वो भूखे रह गए? क्या उनके बच्चे भूखे रहे? नहीं नहीं, उन्होंने रब की राह में खर्च किया था, रब ने पहले से ज्यादा उनको नवाजा। आला किस्म का घोड़ा मौजूद था, मगर पैदल हज को जाते थे। चूंकि हुजूर ने फरमाया जो मक्का से पैदल चल के हज को जाए, हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी जाती है। वह नेकियों के हरीस थे, उसे हर कदम पे नेकी चाहिए। जवानी के दिनों में तबलीग करना, उमर फारूक आजम की फौज में शामिल होकर जिहाद करना, यह मामूल था दोनों भाइयों का। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त में इन दोनों भाइयों की उम्र थी 7 साल या 8 साल, मगर सिद्दीक अकबर 2 साल रहे, उसके बाद फारूक आजम 10 साल रहे। फारूक आजम के जमाने में हजरत इमाम हुसैन फारूक आजम की फौज में शामिल होकर जंग कादसिया में शामिल हुए। इमाम हसन फारूक आजम की फौज में
शामिल होकर दूसरी जंगों में शामिल हुए। इमाम हुसैन ने कभी ये नहीं कहा कि फारूक आजम मेरा गासिब है और सिद्दीक अकबर गासिब है, नहीं नहीं, मौला अली सिद्दीक अकबर को हिमायत दी। मौला अली ने उस्मान फारूक आजम की फौज में शामिल रहकर उनका शाना बशाना, उनको मशवरा देकर उनकी खिलाफत को तस्लीम किया। उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में मौला अली उनके एडवाइजर रहे, उनके साथ शरीक रहे, यहाँ तक कि जब बलवाइयों ने उस्मान गनी का घर घेरा, अपने दोनों जवान बेटों को हसन और हुसैन को मौला अली ने दरवाजे पे खड़ा कर दिया। खबरदार कोई बलवाई इस रास्ते से अंदर घुसने नहीं पाए और अमीरुल मोमिनीन को कोई तकलीफ नहीं होने पाए।